خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے یائر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یوں کہتے ہوئے اس کی بہت منت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب وہ اس کے ساتھ چلا اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے، اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا بلکہ بدتر ہو گئی تھی، یسوع کی خبر سن کر ہجوم میں سے اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، اور وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اسی دم اس کا ادرار خون بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی ہے۔ تب یسوع نے فوراً از خود جان کر کہ مجھ سے قوت نکلی ہجوم کی طرف پھر کر کہا، میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر دوڑائی تاکہ اس کو دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ تب عورت یہ جان کر کہ مجھ میں کیا اثر ہوا ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب یسوع نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، گھبرانا بلکہ اعتقاد رکھ۔ اور اس نے سوائے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی اور کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس میں شور و گل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل کرتے اور روتے ہو؟ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا،
तलीता कुम्मी, जिसका तर्जमा है ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने, और फरमाया कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, और ऐसा खुदा जो हमेशा जिंदा है, और ना सिर्फ वो खुद जिंदा है बल्कि वो दूसरों को भी हमेशा की जिंदगी देने की ताकत और कुव्वत रखता है। मरा खुदा हमेशा जिंदगी की कसरत अता करता है, जिंदगी की बहाली अता करता है, जिंदगी की मामूली अता करता है। और हर इंसान के लिए खुदा की यही ख्वाहिश है कि हर इंसान जो उसका बेटा और बेटी है वो हमेशा सलामत रहे और जिंदगी की खुशियों से हमेशा मामूर रहे। ऐसा ही कुछ हमने आज की पहली तिलावत जो हिकमत की किताब में से हमने सुनी थी, उसमें हमने सुना कि मौत खुदा की बनाई हुई चीजों में से नहीं है, और ना जिंदों की मौत से खुदा को खुशी हासिल होती है। खुदा नहीं चाहता कि ये जिंदगी खत्म हो जाए, या वो जिंदगी जिसे उसने अपनी ही शक्ल और सूरत पर तख्लीक किया, बनाया और अपना ही दम इंसान की जिंदगी में फूंका, खुदा कभी नहीं चाहता कि ये जिंदगी खत्म हो जाए, मिट जाए और इसका नामो निशान बाकी ना रहे, बल्कि खुदा चाहता है कि उसके बेटे बेटियां हमेशा खुश रहें, हमेशा तवाना रहें, और हमेशा खुदा की मामूली से हासिल करें, और हमेशा ही अपनी जिंदगी की निजात को हासिल करें। और यही पैगाम आज अंजील मुकद्दस की इस खूबसूरत तलावत में भी हमें मिलता है, जहां 2 मौजज़ों का जिक्र हमने सुना है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में 3 मुर्दों को जिंदा किया, 3 मुर्दों को जिंदा किया। एक तो आज हमने सुना कि ये यायर की बेटी, छोटी बेटी 12 साल की थी, जिसे खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया। मर गई थी और यीशु ने कहा नहीं सोती है, मर गई थी, लेकिन यीशु ने उसे उठा खड़ा किया और दोबारा से उसकी जिंदगी बहाल कर दी। फिर नाइन शहर की बेवा का बेटा, जवान बेटा, एक बेटा, और वो बेवा थी और जनाजा जा रहा था, और यीशु को बताया गया कि ये एक बेवा है और उसका बेटा एक ही इकलौता बेटा है, और वो इंतकाल कर गया। और यीशु ने जनाजे को छुआ, और यीशु के छूने से वो नौजवान जो है वो जिंदा हुआ। और फिर हम जानते हैं कि लाजर जो यीशु का दोस्त था, जिसे यीशु ने 4 दिन का कब्र में रखा हुआ, जिसे यीशु ने पुकारा कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, और लाजर जो है कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। तो खुदा चाहता है कि उसके बेटे बेटियां हमेशा जिंदगी की कसरत से रहें और जिंदगी की कसरत से पाएं और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। आज की ये जो तलावत है अंजील मुकद्दस की, जिसमें हमने इन 2 मौजज़ों का बयान सुना है, ये मौजज़े के अंदर मौजज़ा है। खुदा यीशु मसीह जब गलील की झील के किनारे कश्ती पर से उतरते हैं, एक बड़ा हजूम यीशु के पीछे हो लिया है, और एक यायर नामी इबादत खाने का सरदार है। ऐसे जैसे ये इबादत खाना है, इबादत खाने का सरदार, आला
कोशिश की होगी। हाँ जी, जब इंसान अपनी सारी ताकत और कुव्वत खर्च कर चुका होता है, फिर वो खुदा की तरफ राग़िब होता है, फिर वो खुदा की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मेरी ताकत और कुव्वत खत्म हो गई है। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन अब इसके बाद खुदा का फजल ही है जो मुझे बचा सकता है, जो मुझे शफा दे सकता है और जो मेरी दुआ को सुन सकता है। तो अपने टाइम उसने बड़ी तगोदो की होगी। एक मोअज़्ज़ज़ इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, आला रुतबे पर फाइज यायर नामी इबादत खाने का सरदार यीशु के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है। छोटी बेटी, शायद उसकी एक ही बेटी थी, एक ही औलाद थी, और उसने कहा मेरी बेटी बहुत बीमार है और तू आ और चलकर उस पर दुआ कर और उसे छू, और मेरा ईमान है कि जब तू आएगा तो मेरी बेटी शफा पाएगी। खैर यीशु उसकी बात को सुनकर उसके साथ चले जाते हैं, और लिखा है कि जब यीशु जा रहा था तो एक बहुत बड़ा हजूम जो उस पर गिरे पड़ते थे, एक बहुत बड़ा हजूम यीशु के साथ साथ चल रहा था। अब यीशु मसीह, गौर करें, यीशु मसीह जो है इस यायर नामी इंसान की बेटी को शफा देने के लिए उसके घर जा रहे हैं। इस छोटी बेटी को शफा देने के लिए जो 12 बरस की थी, छोटी बेटी को शफा देने के लिए यीशु मसीह जो है इस शख्स के साथ जा रहे हैं। लेकिन इस हजूम में एक खातून है जो 12 बरस से बीमार थी। वो 12 बरस की छोटी लड़की और ये 12 बरस से बीमार खातून, इसने भी अपने टाइम अपनी सारी कोशिश कर ली थी। हाँ, लिखा है कि उसने अपना बहुत इलाज करवाया था और कई तबीबों से और कई जो है इलाज मालजा करने वालों से अपना इलाज करवाया और अपनी सारी रकम और अपना सारा सरमाया अपने इलाज पर खर्च किया, लेकिन कुछ बन ना पड़ा, शफा ना मिली थी। तो इसने भी अपने टाइम सारी कोशिश कर ली थी, अपनी ताकत और कुव्वत, अपना सरमाया, अपना पैसा खर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि अब मेरी शफा जो है वो यीशु के पास ही है। अजीजों, जब इंसान की ताकत और कुव्वत खत्म हो जाती है, जहां से इंसान की ताकत और कुव्वत खत्म होती है, जहां से इंसान की कमजोरी शुरू होती है, जहां से इंसान की थोड़ी सी मायूसी और नाउमीदी जो है शुरू होती है, वहीं से खुदा का जलाल शुरू होता है, वहीं से खुदा की ताकत और कुव्वत जो है वो शुरू होती है। तो खैर ये अपना सब कुछ खर्च कर चुकी थी, लेकिन अपने टाइम उसने अपने दिल में ख्याल किया था कि अगर मैं उसकी पोशाक का दामन ही छू लूंगी तो मैं शफा पाऊंगी। खैर वो चुपके से आई, हजूम बना है। लिखा है कि लोग यीशु पर गिरे पड़ते थे, इतना हजूम था, शायद बहुत सारे लोग यीशु को छू रहे थे और यीशु के साथ जो चल रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन उनके छूने से यीशु ने उनसे कोई मुखातब नहीं, यीशु मुखातब नहीं हुआ, उनसे कोई कलाम नहीं किया। लेकिन जब इस खातून ने छुआ तो यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ है, क्योंकि वो जो हजूम था वो तो सारे जैसे भेड़ चाल होती है, जैसे लाई लग होते हैं, यीशु के पीछे पीछे सारे चल पड़े थे। लेकिन इस खातून ने ईमानी नीयत के साथ छुआ था, ईमानी शिद्दत के साथ छुआ था, और जब सब कुछ खर्च कर चुकी थी, जब हर तरह से मायूस हो चुकी थी, तो फिर ईमान की मजबूती के साथ छुआ था कि अब मेरा फैसला यही है कि मेरी शफा मेरे यीशु के पास है, और मैं सामने से भी नहीं उससे कहूंगी, लेकिन मैं अगर उसकी पोशाक का दामन भी छू लूंगी तो मैं शफा पाऊंगी। अजीजों, कलाम मुकद्दस के माहिरीन कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का कोई इरादा इस
का पोशाक का दामन छुआ, लेकिन अपने दिल में इरादा किया था, अपने ईमान में ये इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि अगर मैं उसकी पोशाक को छूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और जैसे उसने यीशु की पोशाक को छुआ तो लिखा है कि कुव्वत यीशु मसीह से निकली और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ है। शागिर्द कहते हैं कि तू देखता नहीं है कि लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ, लेकिन यीशु जानता था कि किसने मुझे ईमान से छुआ है। जी, किसने मुझे ईमान से छुआ है, किसने मुझे ईमानी नीयत से छुआ है, किसने मुझ पर अपने मुकम्मल भरोसे का और मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है, यीशु जानता था। तो फिर जब ये बातें हो रही थी, फिर वो औरत सामने आई और यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी है। यीशु ने उससे बहुत बड़ी बात की कि तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी है, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ से बची रहे। अजीजों, खुदा के कलाम में दर्ज है कि खुदा के लोग खुदा से शिफा पाते हैं जब खुदा में छूता है। जैसे यीशु मसीह ने वो नाइन शहर की बेवा के बेटे के जनाजे को छुआ था और वो लड़का उठ खड़ा हुआ था। और ये यार नामी जो है बात खाने का सरदार, इसकी बेटी को भी छुआ था और वो उठ खड़ी हुई थी। जब यीशु छूता है या कोई यीशु को छू लेता है तो खुदा शिफा देता है। या यीशु जब कलाम करता है और जब यीशु अपना कलमा अदा करता है और अपने अल्फाज कुदरत वाले, ताकत वाले, शिफा वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है तो इंसान शिफा पाते हैं। और यीशु पर ईमान लाने से शिफा है। अजीजों, आज का ये जो मौजज़ा है, ये यायर की बेटी की शिफा का मौजज़ा और ये जो 12 बरस से बीमार खातून, इसका मौजज़ा, ये हमें दावत देता है कि हम भी ईमान के साथ अगर खुदा के पास आते हैं तो हम खुदा से शिफा हासिल कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां ईमान के अरूज की कहानियां बयान की गई हैं, मजबूत ईमान की दास्तानें बयान की गई हैं। तकवीर की किताब में याकूब जो है वो सारी रात फरिश्ते से कुश्ती करता है, खुदा का फरिश्ता उसके साथ कुश्ती करता है। और जब सुबह होने लगती है, सूरज निकलने लगता है और वो फरिश्ता आसमान पर जाने लगता है तो वो उसकी रान को पकड़ लेता है, वो उसकी टांग को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। ये थोड़ी सी ईमानी जिद है, ईमानी जिद है। और कभी कभी ईमान में खुदा से जिद करनी ही चाहिए। क्या खुदा मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, मेरा ईमान तुझ पर है और मेरा काबिल भरोसा तुझ पर है, मैं अपना इत्मीनान तुझ पर रखता हूं तो मुझे ये चाहिए। और इसी तरह इस खातून ने भी अपने दाई सारी कोशिश कर ली, लेकिन अब इस नतीजे पर पहुंची थी कि मैंने अगर इसकी पोशाक का दामन छुआ तो मुझे शिफा जरूर मिलेगी। अजीजों, खुदा जरूर शिफा देता है, खुदा जरूर बहाल करता है, खुदा जरूर हमारी आंखों के आंसू पहुंचता है। लेकिन शर्त इस बात की है कि हम ईमान के साथ आए, मजबूत इत्मीनान के साथ आए, कामिल भरोसे के साथ आए। और ईमान की मजबूती के साथ जब हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा भी अपनी रहमत का, अपने फज़ाइल का और अपनी शिफा का दर हमारे लिए खोलेगा। मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन।